Hello everyone, I hope you are doing well. Uh, in this video, we start a new chapter, that is our third chapter, C++. Before starting data structure, we have to start, we have know about the C++, what are their programs, what are the various type of, how can a program can execute it, and all these things. And how can we make some exes file. Previously you learn about that, but in this video, or in this session, complete session, we take a detailed learning of C++. So let's start with C++. So first of all, see what are the basic terminologies, and what are their basic introduction, all these things. And they then we see what are the advantages of C++, and what is the traditional procedure programming approach and object oriented programming approach. And we compare why object oriented programming approach is come in working than or very efficient than traditional procedure programming approach. And next we see the what are the tokens, and see some basic data types, what various type of data types is there in C++. So we see the what are the basic data types. And so let's start. C++ is object oriented programming language, and C++ was developed by Bra- Barn Stroop at AT&T Bell Laboratories in USA in early 80s. And C++ is an extension of C. मतलब क्या होता कि सबसे पहले डेनिस रिची ने जो सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, राइट. सो डेनिस रिची के सी लैंग्वेज में थोड़े उसमें एक लिमिटेशंस थी. दैट इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज. सो दैट इज it want to write various function for various uh, various outputs. So here some additional requirement, additional additional things is added into the C++. So it can make as a object oriented programming language. Okay, so it is object oriented based language. How it is object oriented, we see in next uh, in next videos. Okay, so C++ is an incremented version of C. Okay, C++ is superset of C. The facilities like classes. Here is the answer why it is called object oriented programming language. Here we introduce classes and use the classes, as well as function overloading, operator overloading are added in the C++. And it helps to minimize the large program into small. It helps to minimize large line code of lines into the small blocks. So that's why we easily use all um, this program. Okay, so क्या होता था कि पहले क्या होता था, प्रोसीजर लैंग्वेज रहती थी जिसमें हमें 2000-3000 लाइन का कोड लिखना पड़ता था. एंड दैट टाइम हमें एक ही चीज़ को सो दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता था कि 200 2000 3000 लाइन का कोड लिखना पड़ता था. एंड वी यूज कोड. अगर आपने कोई कोड लिख लिया है, सो उसी कोड को हमें बार बार रीयूज कर नहीं सकते थे, राइट. हमें हर इसके लिए एक अलग कोड लिखना पड़ता था. So that why it time consuming, and it takes a lot of memory into memory blocks. And it take lot टाइम. मतलब अगर देखिए ना, सिंपल बात है, अगर एक ही चीज़ को वो एक बार कंपाइल करके रन कर देगा तो वो उसके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, राइट. और उसको बार बार वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है.
बट फंक्शंस में क्या होता है कि हमें वो फंक्शन कॉल करना पड़ता है, वो पूरे फंक्शन को जब तक टॉप टू बॉटम पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक वो उसका आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगा, राइट। सो हम देखेंगे वो क्या है आगे में, हमें वो पढ़ना ही है, राइट। So, any real life application systems such as editor, compiler, databases, communication systems can be built in C++. जो भी हमारे एडिटर मतलब जिसमें हम कोड करते हैं, सिंपल सी प्लस प्लस का भी कोड करते हैं, या फिर जो भी हम जैसे विजुअल बेसिक्स यूज़ करते हैं उसका एक फ्रेमवर्क है, वो सब, या फिर डेटाबेसेस जैसे कि ओरेकल बोल सकते हैं हम, वो भी सी प्लस प्लस को ही लेके बनाएगा। वेरियस टाइप ऑफ कंपाइलर्स हो गए जैसे TCC, GCC, दैट इज ऑल आर द कंपाइलर्स विच आर वी यूज इन C++ ऑल्सो। सो ये सब हम किससे बनाया है हमने, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, उसके इनबिल्ड लाइब्रेरीज थे, है सॉरी, लाइब्रेरीज है। सो दैट्स वाई हमने उसे C++ से ही बनाया, क्योंकि उसे उसे क्या इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना और एक्सपांड करना बहुत इजीली था, बहुत इजी पड़ता था एज कम्पेयर टू सी। सो आजकल क्या जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं जैसे कि लैन हो गया, वैन हो गया, या फिर जो भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं इंटरनेट से वगैरह वगैरह, वो सभी C++ से ही बनाया गया है, राइट। सो दैट इज़ द रिव्यू ऑफ C++। सो देख लेते हैं हम C++ के एडवांटेज क्या है। C++ is an incremented version of C. It is the superset of C. Okay. हमने जो अभी बात किया था, ऑलमोस्ट ऑल सी प्रोग्राम ऑल्सो रन ऑन C++ कंपाइलर। यही इसकी कंपेटिबिलिटी ये है कि कोई भी सी का प्रोग्राम भी आप C++ के कंपाइलर पर रन कर सकते हैं, राइट। फैसिलिटीज लाइक क्लासेस, फंक्शंस, overloading, operator overloading are added in C++. C++ supports polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हम आगे में देखेंगे, लेकिन इतना ये सिर्फ एक एडवांटेज के तौर पे इसे ध्यान रखिए, C++ सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज कैन बी बिल्ड बाय C++। इसमें कुछ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइब्रेरीज जैसे कुछ लाइब्रेरीज है जैसे गेट CH, या फिर कुछ ऐसे लाइब्रेरीज है जो इनबिल्डली C++ में बिल्ट है या फिर इससे से बनाए गए। जब भी हम जावा के बारे में सुनते हैं, जावा ऑल्सो इज डिराइव्ड एंड created by with the help of C++, because that one also object oriented programming language. So our next advantage is C++ program can be easily implemented, maintained and expanded. ओके हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे मेंटेन करना, उसे एक्सपांड करना बहुत इजीली है, हम इजीली उसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कोड जो रहता है वो स्प्लिट अप रहता है। हम क्लासेस बनाते हैं, वेरियस टाइप के क्लासेस बनाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं मेन प्रोग्राम में। सो दैट्स वाई हमें उसे अगर चेंजेस करना है तो हमें उसी कोड में करना है, प्रॉपर उस कोड के ब्लॉक में करना है, राइट। हमें उस मेन प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम देख लेते हैं व्हाट इज द ट्रेडिशनल प्रोसीजर लैंग्वेज अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच। उसमें डिफरेंशिएशन देखेंगे कि ट्रेडिशनली जो प्रोसीजर लैंग्वेज प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच था वो किस तरह से था, एंड and why object oriented programming approach is coming to the light. So let's see. Emphasis is on doing things, and here the emphasis is on the data rather than procedure. So ट्रेडिशनल प्रोसीजर अब प्रोग्रामिंग में क्या होता था,
उसमें हम किस पे चीज़, जैसे कि हमें कोई आउटपुट या फिर कोई उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है उसे जनरेट करना है, तो हम उस पर फोकस करके ही करते थे. बट वी नॉट टेक डेटा एज ए थिंग्स. ओके, सो हम थिंग्स पे वो फोकस करते थे कि हमें उस पे उसका डिजायर्ड आउटपुट क्या लाना है, राइट. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि डेटा से ही जो भी उसका डिजायर्ड आउटपुट है वो निकलता है, राइट. सो वी एम्फेसिस ऑन द डेटा रादर देन द प्रोसीजर. Large programs are divided into smaller programs known as the function. हम क्या करते थे, ट्रेडिशनली क्या करते थे कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता था, राइट. हम उसमें क्या करते थे, सी में हम फंक्शंस को यूज़ करते थे, राइट. हम एक फंक्शन यूज़ करते थे जिसको हम यूज़ करते थे हमारे मेन प्रोग्राम में टू परफॉर्म द वेरियस आउटपुट्स. ओके, सो हम उसको स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स में एज ए फंक्शन करके बनाते थे, और विद दैट फंक्शन वी विल डू नो लार्ज प्रोग्राम. ओके, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में ऐसा नहीं होता. उसमें हम क्या करते हैं पूरे एंटिटीज को ही डिवाइड कर देते हैं. अब एंटिटीज को डिवाइड करना यानी क्या होता है कि एक बड़ा प्रोग्राम है, हम उसको क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो क्लासेस है या फिर ये जो चीज़ है हमें दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं. हम उसे उस दूसरे प्रोग्राम्स, ये तो सिर्फ लिमिटेड रहेगा. ट्रेडिशनल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैसा है, लिमिटेड होता है कि हम उसी प्रोग्राम में उसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस बना के उसे स्टोर कर सकते हैं, एंड देन वी यूज वेन एवर इट नीडेड. ओके, सो दैट इज द मेन थिंग of object oriented approach. Okay, data move openly around the system from function to function. अब जो भी हम फंक्शंस यूज करते हैं हम उसे पैरामीटर वगैरह पास करते हैं और उस डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट करते हैं. बट इसमें क्या होता है कि जो डेटा हाइडिंग जो होता है वो उतना प्रॉपर हो नहीं पाता, राइट. डेटा हाइडिंग इसमें हो नहीं पाता है. सो दैट्स बट इन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शंस. अब इसमें क्या होता है कि दूसरा फंक्शन टू फंक्शन कॉल होने से उस वो डेटा की जो सिक्रेसी है वो अ, जो सिक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा को हाइड करते हैं, एंड एक्सटर्नल जो फंक्शंस है उसको हम उनको एक्सेस नहीं देते, राइट. सो दैट्स वाई डेटा इज हिडन, एंड हियर इज here we mm, here we bypass the ambiguity. So that's why एम्बिग्यूटी मतलब जैसे कि अगर फंक्शन टू फंक्शन जा रहा है तो उसमें क्या होता है कि कोई पैरामीटर मिक्स मेलिशियसली उस प्रोग्राम में वर्क फंक्शन हो जाता है, राइट. सो दैट्स वाई जो आउटपुट हमें मिल पाता है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता, राइट. इट एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग डिजाइन. अब टॉप डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोसीजर लैंग्वेज यानी क्या होता है, जैसे कि लाइन टू लाइन वर्क करना, राइट. एक सिंपल एक प्रोग्राम का कोड होता है, उसमें लाइन टू लाइन हम उस कोड को लिखते हैं, ठीक है. हम उसकी प्रोसीजर लिखते हैं कि ये होगा वो होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा अप्रोच नहीं रहता, इसमें बॉटम अप अप्रोच रहता है, राइट. First it work on the that proper for classes, and then it comes to the main program. ठीक है. सो हम बॉटम अप और टॉप डाउन देखेंगे बाद में, जब हम कोड करेंगे मैं तब आपको बताऊंगा इसके बारे में. सो our next topic is tokens.
द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम आर नोन एज टोकन्स। जो भी हमारा प्रोग्राम में जो भी चीज़ रहता है, जो भी हम कोड लिखते हैं, उसमें जो भी सिंगल कीवर्ड बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो भी है वो सभी क्या है, टोकन्स है बस। सो सी प्लस में कौन कौन से कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स एंड ऑपरेटर। सो लेट्स सी वन बाय वन keywords. There are 48 C++ keywords. These keywords has a specific meaning associated with them. This keyword can be used in variable names. अब देखिए, जो भी हम कीवर्ड यूज़ करने वाले, कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो जो कीवर्ड है वो एक प्रॉपर वर्किंग करेगा, जो भी उसका रिलेटेड वर्क होगा वो वर्क करेगा। सो इसमें हम देख लेते हैं कि हम 48 कौन कौन से कीवर्ड्स है। दैट इज द ASM, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैरेक्टर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू। अब ये जो है ये सब जो हम यूज़ करने वाले सिंपल जो हम प्रोग्राम की जो एक फॉर्मेट है उस पर जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे दैट इज़ द कीवर्ड। ओके, डबल, एल्स, enum, extern, float, for, friend, go to, if, inline, integer, that is the int, long, new, operator, private, protected, public, register, return, short, sign, size of, statics, struct, switch, template, this, throw, try, type def, union, unsigned, virtual, void, volatile, and while. All these 48 keywords is used in C++. Okay, so when we code, where we use all these keywords in that program. Okay, so उसके एक एक जब भी हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे मैं आपको उसके भी रिलेटेड बताऊंगा कि ये क्या है। बस आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमारे 48 कीवर्ड्स होते हैं C++ में जो हम हमारे कोड में यूज़ करते हैं, राइट। आइडेंटिफायर्स, identifiers refer to the name of the variable, function, array, classes, etc. In C++, I variables all C in C++ variables must be identified with unique names, and that unique names are called the identifier. जो भी हमारे वेरिएबल रहेंगे, जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे या फंक्शन यूज़ करेंगे, एरे का यूज़ करेंगे, क्लासेस यूज़ करेंगे, उसका एक नहीं क्या प्रॉपर एक प्रॉपर नेम होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। सो उसको सी प्लस प्लस कंपाइलर आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज द आइडेंटिफायर ऑफ दैट प्रोग्राम। ओके, सो सिंपल मीनिंग होता है आइडेंटिफायर के, टू आइडेंटिफाई द यूनिक एलिमेंट इन द प्रोग्राम। ओके, वो कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, एरे हो सकते हैं, क्लासेस क्लासेस हो सकते हैं। अब नीचे कुछ रूल्स है कि हम उस आइडेंटिफायर को कैसे लिख सकते हैं, उसे यूनिक कैसे बना सकते हैं। ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट and underscores are permitted to make it uniquely. Okay, second one is the name cannot start with the digit, कोई भी नाम डिजिट से ना स्टार्ट नहीं होना चाहिए, राइट। थर्ड वन इज द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर द डिस्टिंक्ट। ओके, अपर केस कैपिटल एंड स्मॉल केस इन स्मॉल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब ये जो यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज़ किए हैं, हम उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग इन द आइडेंटिफायर। एंड सी प्लस प्लस डज नॉट है लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर। आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं उसे, उसका कोई लेंथ डिफाइन नहीं किया गया। सो यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हमें इतना ही लेंथ का या इतना ही कैरेक्टर्स का ही वो डेटा होना चाहिए, वो नेम होना चाहिए। आप जो चाहे आप लिख सकते हैं, राइट। बट यू हैव टू फॉलो ऑल दिस फोर रूल्स टू क्रिएटिंग द आइडेंटिफायर्स। ओके,
बेसिक डेटा टाइप। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा टाइप क्या है। सिंपल डेटा टाइप से सबसे पहली बात तो डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स or simply type is an attribute of the data which tells the compiler or interpreter how the program intend to use the data। मतलब जो भी हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं या फिर जो भी हमने फंक्शंस या फिर क्लासेस जो डिफाइन किए हैं वो किस टाइप का डेटा है, राइट। उसका टाइप पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा रहेगा वो उसका एक हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, राइट। और हर प्रोग्राम में हमें अलग अलग टाइप का डेटा यूज़ करना होगा। सो हियर इट डिफाइन द व्हाट विच डेटा टाइप इट इज। ओके, सो there are three types of data types in C++, that is user defined type data type, built-in data type, derived data type। All these three are the data types of C++। अभी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लासेस, इन्यूमरेशन। ये हम सब चीज़ें देखेंगे अब, क्योंकि हमें जो इसी पे वर्क करना है, राइट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे। एंड डिराइव्ड डेटा टाइप आर array, functions and pointer। And we move over next data type, that is the built-in data type, that are the integer, character, void, float and double, right। सिर्फ देख लो आप, हमें ये सब यूज करना है। जैसे जैसे हम यूज करेंगे मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा, राइट। सो हियर इज सम डेटा टाइप एंड हाउ इट takes memory in our memory blocks। so let's see, कैरेक्टर जो रहता है वो 1 बाइट्स रहता है। 1 बाइट्स यानी 8 बिट्स, राइट। 8 बिट्स की जगह कैरेक्टर लेता है, 1 बाइट की जगह कैरेक्टर लेता है, राइट। और इसका रेंज क्या होगा, -128 to 127। अब वो जो 128 -128 to 127 जो रेंज है, रेंज किस चीज़ की है कि हम जो भी नंबर है वो 127 डिजिट्स तक लिख सकते हैं, राइट। सो दैट इज द रेंज ऑफ दैट कैरेक्टर। ओके, unsigned character is always start with 0 to their last range। so अनसाइंड कैरेक्टर जो रहता है वो पॉजिटिवली जगह, अगर अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करनी है तो हम अनसाइंड कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसकी रेंज डिफाइन होती है 0 to 255। एंड साइंड रेंज, साइन कैरेक्टर वी यूज लाइक कैरेक्टर जस्ट -128 to 127। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो साइन कैरेक्टर ही लेगा, राइट, साइन टाइप का ही लेगा, राइट। सो कीप इन माइंड दैट simple character is not simple character, it is a signed character। okay, so it will also take 1 byte into memory। okay, integer, integer we use as a keyword in int। uh, it takes 2 bytes and its range is -32768 to 32767, right। and unsigned integer 0 to 65535। okay, signed integer it's take unsigned integer it's take sorry signed integer it's take 2 bytes -32768, same as a integer, okay, to 32767, right। now here is one more is a short integer, right। it also take 2 bytes -32768 to 32767। most of time we use the integer or signed unsigned integer, we not need to take this short or all these things। unsigned short integer takes 2 bytes to 0 to 65535 is the range, and signed short integer it's take -32768 to 32767।
अब जो शॉर्ट हम साइंड शॉर्ट इंटीजर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर जो यूज़ करते हैं वो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें उसे यूज़ कहाँ करना है। उसके भी कुछ रूल्स है या फिर उसके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, सो दैट्स व्हाई वी यूज देयर। ओके, long integer take 4 bytes into the memory, and its range is -2147483648 to 2147483647. Okay, and unsigned long integer, it almost double, that is 0 to 426 94967295. अब ये जो यूज़ करते हैं हम लॉन्ग, जब भी हमें डेटा लॉन्ग रेंज का डेटा यूज़ करना होता है, दैट दैट टाइम वी यूज़ लॉन्ग इंटीजर एंड अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ओके, फ्लोट। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली जाती है इंटीजर में, जो वैल्यूज़ ली जाती है वो पॉइंट में नहीं होती है, डेसिमल फैक्टर डेसिमल में नहीं होती है वैल्यू। इट्स ओनली टेक द पॉजिटिव एंड राउंड ऑफ वैल्यूज। Okay, but float takes all the decimal and uh, whole all numbers it takes. Okay, so my its range is minus 3.4 e 38 to 3.4 e 38. Okay, double, it's take 8 bytes and float takes the 4 bytes into the memory. Double takes the 8 bytes into the memory and its range is minus 3.e 308 to 1.7 e plus 308. Okay, and long double, it's take 10 bytes into the memory and its range is minus 3.4 e 4932 to 1.1 e plus 4932. So here is our data types. What are the data types? Simple, our built-in data types are integer, character, void, float, double. All these things are all these the building data types. And here is one more data type is present, that is a void. It is the zero data type. Its value is, it returns the zero value to any function. Okay, void मतलब क्या होता है? void मतलब zero, simply void मतलब nothing, जो भी है, ठीक है। Okay, so student, today we stop here. In next video we see its introductory part of remaining of C++, and then we move to coding parts and see what are the if else, switch case, for loop, various loops. So today we stop here. Stay safe. Goodbye.